Okay, beta. Question number one was the probability that any given day is X. If it is raining, the probability that Aaron wears the hat is, if it is not raining, probability he wears a hat is 0.3. अब बेटा यहां से हमने कहानी स्टार्ट की. अब बेटा the probability that it will rain on any given day is X. अब सबसे पहले बेटा आपने इसकी ट्री डायग्राम बनानी है. The probability that it will rain on any given day. रेन की प्रोबेबिलिटी और रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी आर डैश मैंने लिख दी है. सो द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन एनी गिवन डे इज एक्स. ये हमारे पास. एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन इज 1 minus x. The probability that it will rain is x and the probability it will not going to rain is 1 minus x. मोहिब जरा अलग होके बैठ जाए इस वाली चेयर पे. If it is raining, the probability that Aaron wears a hat is 0.8. If it is raining, he wears a hat, the probability of that is 0.8. And 0.2 for not wearing the hat. So beta, if it is raining, the probability that he wears a hat is 0.8. So not wearing hat is 0.2. And if it is not raining, beta, the probability that he wears a hat is 0.3. If it is not raining, the probability that he wears a hat is 0.3. Not wearing the hat is 0.7. Whether it is raining or not, if Aaron wears a hat, the probability he wears a scarf is 0.4. Whether it is raining or not, दोनों cases में, whether it is raining or not, if Aaron wears a hat, the probability that he wears a scarf. If he wears a hat, the probability that he wears a scarf is 0.4, and this will not. This will be 0.6. और नीचे भी यही होगा. If it is raining or not raining, he wears a scarf. The probability is 0.4 and 0.6. Then beta, if he does not wear a hat, ये दो options रहेंगे. If he does not wear the hat, the probability that he wears a scarf is 0.1. If he is not wearing the hat, the probability that he wears the scarf is 0.1. Not wearing the scarf is 0.9. And यहाँ पे भी यही होगा 0.1, 0.9. बेटा ये डायग्राम आपकी बनेगी. सबसे पहले बेटा हमारी ये डायग्राम बनेगी. जरा चेक कर लें बेटा इसे. मैं दोबारा से रीड कर देता हूँ बेटा. द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन एनी गिवन डे इज एक्स. सो नॉट रेनिंग इज 1 minus x. If it is raining, the Aaron wears the hat is 0.8. And if it is not raining, the probability that he wears the hat is 0.3. ये 0.3, 0.8 आ गया, ये 0.2 बन गया, 0.7 बन गया. If he wears a hat, the probability he wears a scarf is 0.4. 0.4 दोनों जगह पे आ गया. And if he does not wear the hat, the probability that he wears a scarf is 0.1. एक पता है, दूसरा हम 1 में से माइनस करके निकाल लेते हैं. क्वेश्चन क्या है बेटा? The probability that on a random chosen day it is not raining. It is not raining. Aaron is not wearing a hat or a scarf is 0.36. Aaron not wearing a hat or a scarf. Not wearing a hat or a scarf. ये बेटा हमारे पास ब्रांच बन रही है. कह रहा है the probability that on a random chosen day it is not raining, and Aaron is not wearing the hat or a scarf. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है.
ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। ये ऐसा ही है कि ये आपके पास, इसका मतलब ये है कि ऑन randomly chosen date is not raining, Aaron is not wearing a hat or a scarf। दोनों नहीं पहने हुए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.36 दी हुई है। तो ये बेटा आपके पास 1 - x सेम ब्रांच पे है। 1 - x मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.9 इज इक्वल टू 0.36। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड द वैल्यू ऑफ x इज 0.43 कह रहे हैं आप। और ये बेटा आपको इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ नॉट रेनिंग वाली प्रोबेबिलिटीज ले लें, उसी से कर लें। बाकी आपको पूरी ट्री डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है जब तक वो कहता नहीं है आपको। डन बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, जरा रीड करें खुद से। अब बेटा आपको डायग्राम थोड़ी बनानी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2, जरा ट्राई करें इसे। वन गोज टू कॉलेज ईच डे बाय एनी वन ऑफ कार और बस और बाय वॉकिंग। तीन चीजें आ गई, कार, बस और वॉकिंग। The probability that he goes by the car is 0.2. The probability that he goes by the bus is 0.45. And the probability he walks is 0.35. When one goes by car, the probability that he arrives early is 0.6. When he goes by the bus, the probability that he arrives is 0.1. When he walks, he always arrives early. Draw a fully labeled tree diagram to represent this information. तो बेटा जी, तीन सोर्सेज है हमारे पास, बाय कार, बाय बस and walking. The probability that he goes by the car is 0.2. The probability that he goes by the bus is 0.45. Walking should be 0.35। ये भी दिया हुआ है, हमें निकालना भी आता है, वन में से माइनस करके हम निकाल सकते हैं बेटा। Okay, when he goes by car, the probability that he arrives early and late, इसे मैं ई डैश लिख रहा हूं, आप लेट लिख सकते हैं। So when he goes by the car, the probability that he arrives early is 0.6 and he arrives late is 0.4. When he goes by the bus, the probability that he arrives early is 0.1 and he arrives late is 0.9. And when he walks, he always arrives early. So arrives early is 1, always arrives early, and late is 0. कौन सी? नहीं जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत नहीं है। वैसे हमने लिए बना देते कि सीक्वेंस चल रहा होता है हमारा। सो दिस इज योर ट्री डायग्राम बेटा। ये आपकी ट्री डायग्राम आ गई है। ये आपको ऑलरेडी ड्रॉ करना आता है। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं बेटा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन गोज टू कॉलेज बाय द कार गिवन दैट ही अराइव्स अर्ली। अब बेटा ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। Find the probability that Juan goes to college by car given that he arrives early. Car given that he arrives early. तो क्या बेटा हमारे पास फॉर्मूला बनता है? याद हमने क्या किया था? भूल चुके हैं यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार निकालनी है गिवन दैट डैश डालते होते हैं ना, गिवन दैट ही अराइव्स अर्ली। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था? C इंटरसेक्शन E
बल्कि यहां पे लिख लें सी इंटरसेक्शन ई, डिनोमिनेटर में कौन सी प्रोबेबिलिटी आती है? यस बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइविंग अर्ली। ये फॉर्मूला हमें बनाना आना चाहिए बेटा, ये फॉर्मूला हमें यूज करना आना चाहिए, बनाना हमें आना चाहिए। ओके, आपने बेटा निकालना है सी इंटरसेक्शन ई। ये कैसे आता होता है? इंटरसेक्शन में क्या करते थे? ऐड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे बेटा? इंटरसेक्शन में क्या करते थे? ऐड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे? किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? किसको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? कार एंड अर्ली। कार एंड अर्ली, कार क्या है? 0.2 है, एंड अर्ली, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करना है। 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.6, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.12। यस, लिखना कंपल्सरी नहीं, आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते। ओके, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइविंग अर्ली, जिस जिस ब्रांच में अर्ली आ रहा है, आगे आज सब बेटा आगे आ जाए, ये आपके लिए चेयर्स रखी हैं, मैं नहीं बैठना इधर। प्रोबेबिलिटी दैट ही अराइव्स अर्ली बेटा, अर्ली यानी कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज हैं, उन सबको जरा शेड करें। कार अर्ली, बस अर्ली, वॉकिंग अर्ली। सो बेटा अर्ली की सारी प्रोबेबिलिटीज डिनोमिनेटर में जाएंगी। 0.2 इंटू 0.6 प्लस 0.45 इंटू 0.1, और लास्ट वाला क्या था हमारा? 0.35 इंटू 1। ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है हमारे पास? 0.515। सो बेटा ये हमारे फॉर्मूला में जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमारे पास आ गई हैं। अब फॉर्मूला पुट कर दें बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार गिवन दैट ही अराइव्स अर्ली, 0.12 न्यूमिनेटर में, 0.515 डिनोमिनेटर में। बताएं आंसर क्या आ रहा है इसका? क्या आ रहा है? 0.23। गिलानी यही आ रहा आंसर? ठीक है। ठीक होगी बेटा ये बात? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए बेटा। फॉर हर बेड टाइम ड्रिंक, सुकी हैज ईदर चॉकलेट, टी और मिल्क विद प्रोबेबिलिटीज 0.45, 0.35 and 0.2 respectively. When she has chocolate, the probability that he has a biscuit is 0.3. When she has tea, the probability that he has a biscuit is 0.6. When she has a milk, she never has a biscuit. Find the probability that Suki has tea given that she does not have biscuit. करें बेटा, जल्दी से करें, मुझे बताएं क्या आंसर आता है इसका।
ठीक है, ओके बेटा। सो हमारे पास क्या आ गया? फॉर हर बेड टाइम ड्रिंक सुकी हैज ईदर चॉकलेट, टी और मिल्क। तीन हमारे पास ऑप्शंस आ गए, चॉकलेट, टी और मिल्क, with probabilities 0.45, 0.35 and 0.2. When he has chocolate, the probability that he has biscuit is 0.3. Not having biscuit is 0.7. When he has tea, the probability that he has biscuit is 0.6. Not having biscuit is 0.4. When she has milk, she never has biscuit. 0. 1. Not having biscuit is 1. Find the probability that Suki has tea given that she does not have a biscuit. Given that she does, probability find out करनी है टी की, probability find out इसका लिखा करें, probability of टी find out करनी है given that she does not have a biscuit, B dash। तो इसका मतलब है T intersection B dash divided by B dash। चेक कर लें बेटा ये। तो पहले P प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन बी डैश निकालने बेटा, मल्टीप्लाई करना है टी और बी डैश को। ये है हमारे पास 0.35 इंटू 0.4। ये क्या आता है इसका आंसर? 0.35 इंटू 0.4 इज 0.14। एंड नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग अ बिस्किट। तो उसमें ये सारे आ जाएंगे, दिस, दिस एंड दिस। So probability of not having a biscuit is 0.45 into 0.7 plus 0.35 into 0.4 plus 0.2 into 1। ये मुझे बता दें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग अ बिस्किट कितना आ रहा है हमारे पास टोटल ओवरऑल? 0.65 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज बेटा फॉर्मूला पुट करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टी एंड नॉट हैविंग बिस्किट इज 0.14 डिवाइडेड बाय 0.65। क्या आंसर आ जाता है? 0.21। चेक कर लिए बेटा, इसमें कोई मसला है तो बता दें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए बेटा, 0.21। नेक्स्ट पे आए क्वेश्चन नंबर 4 पे। On any day, Kino travels to school by bus, by car, or on foot with probabilities 0.2, 0.1, 0.7 respectively. The probability that he is late when he travels by bus is x. The probability that he is late when he travels by car is 2x. And the probability that he is late when he travels on foot is 0.25. The probability that on a random chosen day, Kino is late is 0.235. Find the value of x. इसका क्वेश्चन हमने पहले किया है बेटा, एक्स की वैल्यू निकालनी, वही आप ट्री डायग्राम बनाएंगे।
तो बेटा 3 बना लें अपने पास। बाय कार, बाय बस एंड ऑन फुट। By car, by bus, and on foot. By car is 0.1, by car is 0.2, by bus is 0.1, and on foot is 0.7. The probability that he is late when he travels by bus is x. When he is late, okay, ये बस है और ये कार है। Okay, so the probability that he is late when he travels by bus is x. The probability that he is late when he travels by car is 2x. ये फाइन फॉलोड बाय फाइन इज 0.75, तो जब इधर भी दोबारा करेंगे इसी तरह लिखा जाएगा। इसकी आंसर क्या आपको पता है? चेक कर। So beta, when he travels by car, he is late is 2x, and the probability that he is late when by foot is 0.25, और not late की probability हो जाएगी 0.75. The probability that on a random chosen day Kino is late is 0.235. 0.235 बेटा, लेट होने की probability, ये भी लेट है, ये भी लेट है और ये भी लेट है। x की वैल्यू निकालनी है, तो 0.2 into x is 0.2x plus 0.1 into 2x is 0.2x plus 0.75 0.7 into 0.25 क्या आंसर आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.7 into 0.25 0.175। इसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा ओवरऑल 0.235। यहां से you'll get the value of x which is 0.15।